very warm welcome to all our viewers in today's podcast in our Doctor Speak series with Nature Fit. आज का जो हमारा टॉपिक है, आई डोंट थिंक एनीबडी हु इज व्यूइंग दिस वीडियो has been untouched with this disease. It is malaria. And our topic for today is managing malaria with Ayurveda. Yes, malaria can also be managed, malaria can also be prevented, and it can be cured in a natural way. वही आज का हमारा टॉपिक है और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रणाली बारापत्रे. A very warm welcome, ma'am. Thank you. Before I introduce ma'am, I will just give you थोड़ा सा हम आपको मलेरिया के बारे में बताते हैं. One of the major public health problems in India almost threatens half of the world's population. According to World Health Organization, 3.2 billion people in at least 95 countries are at risk for malaria today. So अगर देखा जाए तो hair disease बहुत छोटा, but it is almost affecting 50% of the world population. काफियों को ये affect कर चुका है और बाकी are at a threat. So इसी पे हम आज थोड़ा we will try to understand from our doctor. Introducing ma'am, Vaidya Pranali Barapatre is an Ayurvedic doctor and she has 16 years of experience in the field. She is founder and director of Radiance Ayurveda Super Speciality Clinic in Nagpur. Ma'am's specialization is Ayurvedic cosmetology and trichology, Panchakarma therapies, Marma Chikitsa, Garbha Sanskar. She's working as a consultant in Govind Rao Vanjari Ayurveda College in Nagpur, proud member of the Kesha Ayurveda Hair and Skin Care Private Limited, presented various papers and posters in many national and international seminars. Some of her achievements are she was invited as a guest speaker for the national webinar series by MUHS Nashik and organized by MS Ayurvedic Medical College, Gondia. Awarded as Best Ayurveda Doctor by Indian Dreamers Award in April 2022. Received an award for Best Entrepreneur by ISOC in 2022. So ma'am has got a lot of achievements as well as a lot of variety of techniques that she is using along with Ayurveda. So that's quite interesting. जो मैम आप कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, काफी सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से आयुर्वेदा के साथ जोड़ रहे हैं. Now going to our first question, malaria. So why is malaria so common in India? सभी श्रोताओं को सबसे पहले मेरा नमस्कार. थैंक यू सो मच मैम. मलेरिया इंडिया में इसलिए कॉमन है क्योंकि हम इसके रीजंस देखेंगे तो जियो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटीज हमारे देश में पाई जाती है वो एक मेन फैक्टर है. और ये इंडिया में से भी नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट्स है या ईस्टर्न पार्ट या फिर सेंट्रल पार्ट जहाँ पे हिली एंड फॉरेस्ट एरियाज रहते हैं और जहाँ स्लो मूविंग स्ट्रीम्स रहते हैं जो कि मॉस्किटो ब्रीडिंग को सपोर्ट करते हैं, ऐसे एरिया में ज्यादातर पाए जाते हैं. एंड देन मल्टी इथनिसिटी होती है, इसका एक मेन फैक्टर. एंड देन अभी जो रिसेंट में हमको देखने को मिल रहा है जो कि है क्लाइमेट डाइवर्सिटी, कड़ी धूप, फिर अचानक से तेज बारिश आना, ये सब चीजों से मलेरिया बहुत ज्यादा पनपने लगता है. Right. And ma'am, it's surprising to know कि malaria can be fatal too. मतलब लोग इससे अपनी जान भी गवा सकते हैं. तो it's not something that should be totally neglected in terms of as a health concern. हम अगर मलेरिया इस शब्द को ब्रेक करेंगे तो माल मीन्स पुअर एंड एरिया मीन्स जगह. तो गंदी जगह जैसे कि दलदल होती है जहाँ पानी जमा हो जाता है, ऐसी जगहों में ये इसके जो रुग्ण है वो ज्यादा रूप से पाए जाते हैं. Right. So I think, ma'am, keeping your, premises clean and, free of mosquitoes is one of the most important things that we should do to avoid this. How is malaria diagnosed and is it connected to the rainy season? हाँ, हम बोल सकते हैं कि इट इज कनेक्टेड टू रेनी सीजन,
पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेनी सीजन में ही इसके जो पेशेंट्स है वो हमें देखने को मिलेंगे। ये थ्रू आउट द सीजन हमको देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीन, इम्प्रॉपर अवेयरनेस जो होता है, जहाँ वो पानी जमा रहता है बरसात का या दलदल पनपते रहती है, उस जगह पे मच्छर भी पनपते रहते हैं। एंड डायग्नोसिस के लिए तो हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जो जिसमें सबसे पहला जो होता है वो हम खून की जांच करते हैं। तो उसमें ब्लड स्मीयर टेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट रहती है, फिर रैपिड मलेरिया का एंटीजन टेस्ट होता है, पीसीआर टेस्ट होती है। ये तो मेन चीजें। और अगर लगता है इन इमरजेंसी कंडीशंस में बाकी ऑर्गन के डैमेज को चेक करने के लिए भी बाकी की भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। अगर किडनी डैमेज के लिए सीरम क्रिएटिनिन होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, ईसीजी चेक करते हैं, चेस्ट चेक। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एंड द कंडीशन वी कैन गो फॉर फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। राइट। एंड व्हाट आर द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स? बिकॉज कई बार होता है जैसे हमें बुखार होता है, बट हमें कब पता चले कि हमें मलेरिया का टेस्ट करा लेना चाहिए? यू नो, व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट और द रेड फ्लैग्स दैट वी कैन सी? लक्षणों को देखने के पहले हम थोड़ा सा मलेरिया कैसे होता है इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो मलेरिया जैसे सबको लगता है कि ये मच्छर के द्वारा होता है, बट मॉस्किटो इज ओनली द वेक्टर। वो सिर्फ प्रसार का माध्यम है, वाहक है। पर जो मेन कॉज होता है मलेरिया का वो प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है। जैसा बैक्टीरिया रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, वैसे ही पैरासाइट्स भी होते हैं। उसमें का जो प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है उसकी वजह से हमको मलेरिया होता है, जो कि हमको मच्छर के काटने से, उसमें भी जो फीमेल मॉस्किटो एनाफेलिस स्पेसिस की जो मॉस्किटो है उसके काटने के द्वारा ये फैलता है। तो थोड़ा सा हम इसकी लाइफ साइकिल को भी देखेंगे कि जो मॉस्किटो रहता है वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, तो उसके खून में जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं वो मच्छर के अंदर जाते हैं और वो मच्छर में फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। और वो इन्फेक्टेड मच्छर अगर किसी पर्सन को काटे तो वो जो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस हुए हैं मच्छर के बॉडी के अंदर, उनके जो जो बेबीज हुए हैं वो फिर से नेक्स्ट पर्सन, जो जिस पर्सन को मच्छर काटता है उसके अंदर जाके फिर वो लीवर में उनका मतलब बढ़ते हैं वो। फिर उसमें लीवर में से वो धीरे धीरे आरबीसी में जाते हैं। आरबीसी मीन्स जो हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वहां पे उनका प्रोडक्शन और ग्रोथ होती है और फिर वो आरबीसी को डैमेज करने लगते हैं। और जब आरबीसी डैमेज होने लगते हैं और ब्रेक हो जाते हैं तो हमको मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। राइट। बट एज अ कॉमन पर्सन, मतलब मुझे बहुत हाई फीवर होगा या व्हाट आर दी, बिकॉज ये मतलब हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि मुझे फीवर है, बट कोई ऐसा है कि इतने टेम्परेचर से ज्यादा हो, कुछ पसीना आना, व्हाट आर दीज बेसिक थिंग्स दैट वी कैन सी? देखिए, मलेरिया के वैसे 4 टाइप्स होते हैं जो कि प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पेसीज के द्वारा होते हैं। तो इसमें मलेरिया के भी 4 टाइप्स है कि फाल्सीपेरम होता है, मलेरिया होता है, ओवेल होता है, वायरस होता है। तो इसमें सब में थोड़ा सिम्टम्स वेरीज दिखाई पड़ते हैं। और जैसे कि फाल्सीपेरम का जो मलेरिया होता है टाइप का, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि उसका जो फीवर है वो ब्रेन तक भी जाता है और ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो सबसे पहले ये लक्षण, फीवर हमें एकदम से नहीं दिखाई देगा क्योंकि इनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। कुछ का महीनों तक भी वो सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब तक कि आपकी इम्यूनिटी लो ना हो। बस छोटे मोटे लक्षणों को वो दिखाता है, जैसे नौशिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया। पर जब वो सिंक्रोनाइज पैटर्न में आ जाता है तो उनका सिंक्रोनाइज एक पैटर्न दिखाई देता है लक्षणों का। तो इसमें सबसे पहले तो हमें 15 मिनट से 1 घंटे तक बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, जिसको हम फीवर विथ रैगर्स बोलते हैं। बहुत तेज ठंडी लगती है और उसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। उसके बाद में फिर इसको हम शीत अवस्था बोलते हैं। फिर आती है उष्ण अवस्था। उष्ण अवस्था में हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। और इसका जो फीवर है वो 2 to 6 आवर्स लास्टिंग होता है।
और फिर धीरे धीरे स्लोली इसके बाद का स्वेदावस्था होती है, जिसमें कि हमें स्लोली पसीना आने लगता है और फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। राइट। तो ऐसा होता है मैम कि जैसे मलेरिया के जो टाइप्स है उनमें फैल्सीपेरम और वाइवैक्स और ओवेली और मलेरिया, ये जो टाइप्स है उसमें से मलेरिया का जो फैल्सीपेरम मलेरिया ये जो है उसमें 3-3 दिन बाद भी टेम्परेचर आ सकता है। फैल्सीपेरम टाइप में हमको कंटिन्यू भी फीवर दिखता है, और ओवेल और वाइवैक्स जो होते हैं उनमें अल्टरनेट डेज फीवर रहता है। Okay. So it is, I think, depending on what type of malaria it is, the symptoms do also vary. Yes. Okay. So, and who are the most at risk for a malaria? मतलब कौन लोग हैं जिनको ये सबसे ज्यादा हो सकता है? जनरली तो ये मतलब जब हम पैसिव स्टेज में रहते हैं रात के टाइम में, तब मॉस्किटो बाइट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। Right. और इनमें से भी जो रिस्क फैक्टर में वो चिल्ड्रन जो अंडर 5 years के एज में है वो एंड प्रेग्नेंट वुमन इज मोर एट द रिस्क, क्योंकि उसका जो मलेरिया है वो बेबी को वो ट्रांसमिट कर सकती है। राइट। एंड लाइक किसी भी पेशेंट को अगर हमारे घर में मलेरिया हो, so should they be like quarantined or anything like that, because there are chances कि the mosquito has is infected mosquito can be in the house. Is it possible? Yeah, it may can transmit the disease. राइट। सो मतलब उनके थोड़ा दूर रहना, प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। राइट। सो व्हाट आर द बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस? आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मच्छर को, आप जो सोर्स है मलेरिया का, उससे कैसे हम दूर रहे। मतलब कुछ तो आई थिंक जो आजकल के बॉडी लोशंस है उनमें ही वो लोग कुछ एंटी मॉस्किटो डाल तो वो बेटर रहेगा, ताकि हम लोग जो डेली यूज करें उसी में मच्छर हमारे ऊपर ना आए। तो या, व्हाट आर द बेसिक हाइजीन एंड प्रैक्टिसेस? ऐसा बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर, और आयुर्वेद में भी इसी को महत्व दिया है कि निदान परिवर्तन ही सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। जहाँ पे भी हमको लग रहा है कि पानी जमा हुआ है उसको उसके निष्कासन पे ध्यान देना चाहिए। देन सोते वक्त में मच्छरदानी लगाकर सोए, सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट यू कैन से सोर्स इट इज। और उसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। जब हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह यूज करते हैं तो एक थोड़ा सा पॉइजनस गैसेस क्रिएट होते हैं। पर जब भी आप मॉस्किटो कॉइल या फिर वो ऑल आउट वगैरह यूज करते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले कमरे में लगाइए उसे, और आप कमरे का दरवाजा बंद करके आप बाहर निकल जाइए और कुछ घंटे तक वहां ना जाइए, और फिर उसको ऑफ करके आप वहां पे सो सकते हैं। राइट, बिकॉज आई थिंक दैट इज नॉट गुड फॉर आवर ब्रीदिंग एंड ऑल, जो हमारे के लिए इसीलिए मॉस्किटो नेट इज वेरी गुड। और आयुर्वेद में तो धूपन चिकित्सा भी बोलिए, जो आजकल जो कॉइल्स वगैरह आ रहे हैं, तो पहले आयुर्वेद में हमारे धूपन चिकित्सा का वर्णन किया, जिसमें हम धूप देते हैं पूरे रूम में, ताकि केवल मच्छर ही नहीं पर सारे जो सूक्ष्म जंतु है उनकी बीमारी से भी हम बच सके और हमारी रक्षा हो सके। बोल देता है। आई थिंक ये एक प्रैक्टिस होती थी कि सुबह उठ के धूप जलाना, कपूर जलाना, एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दैट वाज टू ये सारे आपके जो कीटाणु एंड ऑल ये सब भी इससे हो जाते हैं। इट इज नॉट रिलीजियस, इट इज मोर साइंटिफिक। Right. So now going on the actual treatment, yeah. So how does Ayurveda approach, malaria? What is the treatment that, and is there any significance of doshas in it? मतलब जहाँ आयुर्वेदा आता है वहाँ दोषा आते हैं, तो हर चीज में वो एप्लीकेबल है क्या? आयुर्वेद में जो ज्वर टॉपिक का वर्णन आया है उसमें ज्वर सिर्फ एक अकेला एज ए सिम्टम करके नहीं है, उसके अंदर में बहुत सारे जितने भी जो भी कंडीशन में फीवर हमको दिखाई देता है उस सब फीवर का वो ज्वर व्याधि में वर्णन किया गया है। इट इज अ वेरी वास्ट यू कैन से चैप्टर इन मेंशन्ड इन आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा में जो दोष मलेरिया में आयुर्वेद के दृष्टि से देखा जाए तो
इसमें तीनों दोष, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हुआ रहता है, वो दूषित हुए रहते हैं। प्लस अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ मलेरिया, 7 धातु जो रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी भी दृष्टि पाई जाती है। उसके साथ जो मल होते हैं, मूत्र एंड पुरुष, उनकी भी दृष्टि पाई जाती है। मतलब एक त्रिदोषज व्याधि है। और आयुर्वेदा में इसको विषम ज्वर, आगंतुक ज्वर के अंडर में हम पढ़ सकते हैं। Right. Okay. So, any specific प्रिवेंशन की तो हमने बात की, बट जो हमने ट्रीटमेंट की बात की तो कुछ तो ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले तो जरूरी है व्यक्ति की प्रकृति, बल, व्याधि का बल, ये सब चीजों को देखना बहुत आवश्यक है। उसमें भी उसकी ज्वर की अवस्था क्या है, सामा अवस्था है, निराम अवस्था है, पच्यमान अवस्था है, इन सब अवस्थाओं को देखने के बाद इनकी चिकित्साएं भी अलग अलग तरीके से होती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दवा सभी पेशेंट को जाएगी। राइट। तो ज्वर, आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाएं हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। तो ज्वर के मतलब कितना ज्यादा है और क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से हम बहुत सारी दवाइयां उनको दे सकते हैं। जैसे कि महासुदर्शन घनवटी है, ज्वरांकुश रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, अमृतारिष्ट है, और भी कई दवाइयां मेंशन है बहुत सारी। और स्पेशली अगर धातुगत अवस्था में हम कुछ मेडिसिन मिक्स करके हम उनको काढ़ा भी देते हैं उस धातु के अनुसार में। जैसे पंचतत्व द्रव्यों का स्वाद दे सकते हैं। और अगर जीर्ण ज्वर हुआ है तो उसमें हम दूध के साथ में मिल्क के साथ में प्रोसेस करके शीरपाक भी दे सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि कंडीशन, किस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आता है। और अगर उन्होंने, कई बार ऐसा होता है कि एलोपैथी की ट्रीटमेंट लिया या कोई भी ट्रीटमेंट लो, लेकिन अगर मेजर डिसीज हुआ है आपके बॉडी में, तो वो दवाई लेने के बाद भी जब आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हो, पर कुछ मतलब डैमेज हमारे बॉडी में हुआ रहता है, तो उससे भी निकलने में आयुर्वेद ने कुछ रसायन चिकित्सा भी वर्णन की है। तो हम जिनको मलेरिया हो गया है, उनकी ट्रीटमेंट होने के बाद हम उनको रसायन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि वसंत कल्प हो गए, आरोग्यवर्धिनी रस हो गए। तो ये सब चीजें हम उनको दे सकते हैं। पर ये सभी चीजें जो मैंने बोली वो वैद्यकीय सलाह के अनुसार ही ली जाए। See, absolutely. I think that is must कि आपको जो उसके एक्सपर्ट है उन्हीं के अंडर we should be taking that. So I think thank you so much, ma'am. इतना कुछ हमें पता चला कि मलेरिया is not something we should neglect. उसके काफी तरीके हैं कि हम उसको अवॉइड प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर होता भी है तो आई थिंक आयुर्वेदा वंडरफुली हेल्प्स इन ट्रीटिंग ऑल्सो एंड बिल्डिंग द इम्यूनिटी विच वी हैव लॉस्ट ड्यू टू द डिजीज एज वेल। एंड जैसा आपने बताया कि नॉट वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल, यही आयुर्वेदा का एक मेन यूनिकनेस है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं, बिकॉज वो आपको पूरी तरह समझ के आपका क्या दोष है, आपके क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या सहन शक्ति, और बहुत सारे पैरामीटर्स को हम अंडरस्टैंड करके ही आप उनको एक मेडिकेशन प्लस उनका जो भी चेंज इन लाइफस्टाइल एंड पूरा आप उनको देते हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाई आयुर्वेदा का जो अभी आउटकम है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब people are really appreciating also, and they are moving towards getting healed by this science. So now summarizing the session, thank you so much ma'am. आप जो viewers हैं वो मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। नागपुर के व्यूअर जो हैं वो कंसल्टेशन के लिए पर्सनली जा सकते हैं, क्लिनिक मैम का नागपुर में है। और जो बाकी व्यूअर्स हैं वो ऑनलाइन हमने उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आप उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड यू कैन कंसल्ट विद हर। One fact before we summarize, a senior health ministry official, I think इंडिया का विजन है कि हम मलेरिया फ्री होने चाहिए by 2027 and completely eliminate the disease by 2030. So I think by sharing this information, we are kind of helping towards that mission as well. So thank you all for viewing, and we will be again next week with another doctor, another expert, another health concern, and treating it in a natural
that's what the mission for Nature Fit is. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.